So to begin, I would like to introduce our speaker, Mr. Jawad Basit. Mr. Jawad is the Senior Vice President of the Ravelian Students Research Society for his panel. He has 45 plus publications in his name and is a certified meta-analyst. He is a trainee editor at SJRMC and is serving as a peer reviewer for multiple international journals. He has taken his interest in stats and combined with his research expertise make him an ideal presenter for today's topic, which is a novel topic that many people at the undergraduate level usually don't try to pursue, as they find it to be a bit out of their range as an undergraduate student, and find this kind of research to be something that is very hard to do. So for all of our research enthusiasts today, Dr. Jawad will be presenting his session on the PICO table, the key to starting your first meta-analysis. So Jawad, if you could kindly open your mic and camera and share your screen to see if it's working, and then we'll begin the session. Thank you, Hamza, for the intro. Am I audible enough to all of you? Yes, you are. You're audible. Okay. So thank you, Hamza, for the introduction. And I'm going to conduct a session on making of a PICO table. This is going to be a hands-on workshop. So we will be choosing a topic and making a PICO table while in this session. This session was supposed to last till 10:45. So I have divided it into two parts. The first part is theoretical explanation of different components of PICO. Population intervention, what they actually mean, and why do we combine them, and how to make a search strategy, what it actually is. It's just 4 or 5 slides, and then we will move on towards the hands-on part, and we will just be covering one database, that is PubMed, in this session. So I'll share my screen now so I can share my slides. Is my screen visible, Hamza? Yes, it is. Okay. So what is a systematic review? First of all, this is something that should have been given ample time, but the sake of this workshop is just to familiarize you guys with what actually a systematic review is, and then and to tell you the basics of systematic reviews and meta-analysis. So a systematic review is kind of a review article. There are a lot of review articles. There are literature reviews, narrative reviews, scoping reviews, systematic reviews, which can go into a meta-analysis sometimes. So one of those review articles is a systematic review. As the name indicates, it uses a systemized approach to collate all the empirical evidence that is pre-specified. Systematic review uses explicit methods to identify, select, appraise, and synthesize results from similar but separate studies in order to answer a specific research question. It uses explicit systematic methods that are selected with a view to minimizing bias, thus providing more reliable findings from which conclusions can be drawn and be made. अच्छा, आसान अल्फाज में सिस्टमैटिक रिव्यू ये होता है कि अगर एक टॉपिक के ऊपर मल्टीपल स्टडीज हुई हुई हैं, ठीक है, और आप उन सारी स्टडीज के, फॉर एग्जाम्पल 20 स्टडीज हैं जो एक टॉपिक पे हुई हुई हैं, और सबके रिजल्ट्स थोड़े बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन आपको एक जवाब उस चीज का नहीं मिल रहा, ठीक है, आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर मुझे जवाब मिले और मैं उसको सीखूं, ठीक है, उसका एक जवाब मैं निकालूं उस रिसर्च क्वेश्चन का जिसके ऊपर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट स्टडीज हुई हुई हैं, उस चीज को एड्रेस करने का तरीका है सिस्टमैटिक रिव्यू, ठीक है। अब सिस्टमैटिक रिव्यू के अंदर ये होता है कि आप मल्टीपल स्टडीज को उठाते हो, ठीक है, और उनके आंसर्स जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल 20 स्टडीज की फाइंडिंग्स आप एक जगह के ऊपर इकट्ठी करते हो, ठीक है। अगर आप उसकी स्टैटिस्टिकल कॉम्बिनेशन करते हो तो वो मेटा एनालिसिस, अगर नहीं करते हो या नहीं हो पा रही, या उसका डेटा जो है वो बहुत हेट्रोजेनस है कि आप उसको कलेक्ट नहीं कर पा रहे, स्टैटिस्टिकली कंबाइन नहीं कर पा रहे, तो दैट इज वहां पे फिर वो सिस्टमैटिक रिव्यू पे रुक जाता है। अगर आप कर लेते हैं, आप प्रॉपर उसको कलेक्ट कर लेते हैं, देन दैट इज अ मेटा एनालिसिस। सो व्हाई डू अ सिस्टमैटिक रिव्यू? देखें, ये सिंपल सी बात है कि एनिमल स्टडीज जो होती हैं वो हायरार्की के सबसे नीचे होती हैं और सबसे ऊपर होते हैं मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक रिव्यूज। मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक रिव्यूज आर ये एक एज प्री रेक होते हैं फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस।
ठीक है। तो ये हायरार्की और बड़े इजी टू पब्लिश होते हैं कंपैरेटिवली। जो रिसर्च हम यहाँ पे आरएमक्यू में करते हैं उसकी निस्बत अगर आप अच्छे जर्नल में पब्लिश कराना चाह रहे हैं तो इट विल बी वे इजियर टू पब्लिश अ मेटा एनालिसिस कंपेयर टू अदर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज वगैरह। ठीक है। तो इसलिए हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है। जब क्लिनिकल प्रैक्टिस के गाइडलाइंस के जो एक्सपर्ट्स बैठते हैं वो गाइडलाइंस बनाते हैं तो उनका जो मेन उनका जो क्रक्स होता है जिसको वो देख रहे होते हैं वो सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस होते हैं, इसीलिए ये बड़ी इजीली पब्लिश भी हो जाते हैं। स्टेप्स ऑफ अ सिस्टमैटिक रिव्यू। ठीक है। राइट अ प्लान फॉर द रिव्यू, सर्च फॉर स्टडीज, सिफ्ट एंड सेलेक्ट स्टडीज, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द स्टडीज, असेस द क्वालिटी। ठीक है। अब देखिए सिंपल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने एक अपना टॉपिक आइडेंटिफाई करना है, उस टॉपिक की बेस पे आपने अपना क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन आपने बना लिया तो फिर आपने एक सर्च स्ट्रेटेजी रन करनी है और आपने रेलेवेंट लिटरेचर ढूंढना है। उस रेलेवेंट लिटरेचर को फिर आपने स्क्रीन करना है, फिर उसको उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और फिर आपने अपना मैन्युस्क्रिप्ट लिखना है। ठीक है। और डेफिनेटली उसके सप्लीमेंट्री फाइल्स के लिए आपको क्वालिटी एविडेंस और रिस्क ऑफ बायस वो सब कुछ करना होता है, बट दैट इज नॉट द स्कोप ऑफ दिस वर्कशॉप। ठीक है। तो बेसिकली ये है कि आपको बस ये इसके मेजर स्टेप्स पता होने चाहिए। जो हम आज स्टेप की बात करें वो टेक्निकली उसका पहला स्टेप है कि टॉपिक आपने बना लिया, आप टॉपिक आपके पास आ गया, अब इसके बाद आपने पहला काम क्या करना है, यू हैव टू मेक अ पीको टेबल। तो ये हमारा आज का वो है। ठीक है। एग्जाम्पल्स एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। इसके ऊपर ना जाएं आप टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर, ये एक्चुअली कॉकरेन का है। ठीक है। स्टैंडर्ड कॉकरेन का वहां से ये कॉपी हुआ है, तो इसलिए इसमें इसकी इस चीज पे ना जाएं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है। ये है एक भी हम उठाते हैं, व्हाट इज द इंसिडेंस ऑफ लो बर्थ वेट इन माइनॉरिटी पॉपुलेशंस कंपेयर टू वाइट पॉपुलेशन। ठीक है। तो ये एक इंसिडेंस का वो है। इसमें से कोई एक क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन एग्जैसरबेटिंग सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है। तो ये किसी भी किस्म का क्वेश्चन जो आपके जहन में आता है वो आप लेके उस पर सिस्टमैटिक रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको उसकी टेक्निक आती है। सिमिलरली इफ कॉफी कंजम्पशन यूजुअली एसोसिएटेड विद डेवलपिंग पैनक्रियाटिक कैंसर। ठीक है। इज एक्सरसाइज इफेक्टिव इन इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इन पर्संस विद सीओपीडी। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आपका कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में जो आ रहा है उसको आपने आंसर करना है और आप उसको चाह रहे हैं कि मैं इसके ऊपर जो प्रेजेंट लिटरेचर है उसको सम अप कर दूं, तो उसका आसान तरीका है कि आप उस पर सिस्टमैटिक रिव्यू कर दें और डेटा देख के फिर डिसाइड कर लें कि मेटा एनालिसिस हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, सो लेट अस कम टू द पीको। देखें, पीको के 4 वर्ड्स हैं, PICO। P stands for patients or populations or participants. I stands for intervention, या फिर बाजू का जिसको PICO के बजाय PECO भी कर दिया जाता है। जब PEC होता है तो वो यूजली एक्सपोजर वाली स्टडीज होती हैं, उसमें अंदर I की जगह वो E कर देते हैं, दैट इज एक्सपोजर। C से कंपैरिजन ग्रुप कंपैरेटर, O से आउटकम। बाजू का आपको SP लिखा मिलेगा, PICOS कर देंगे, S स्टैंड्स फॉर स्टडी डिजाइन या स्टडी सेटिंग। ठीक है। तो ये PICO जो PICO है ये मोस्ट बेसिक वर्जन है, पीको इसको कहते हैं। अगर इसको आप अपने टॉपिक के लिहाज से मॉडिफाई करने पे आ जाए तो ये पीकोस PECO एस वाला पीकोस भी हो सकता है, ये पीकोस SP एंड में आ सकता है, लेकिन नॉर्मली हम व्हाट वी यूज इज PICO पीको। अब व्हाट डू पीको मींस, देखें जब भी आपने एक सिस्टमैटिक रिव्यू का टॉपिक आपने आइडेंटिफाई किया ना, पहला जो उसका स्टेप है दैट इज द टाइप ऑफ पीपल। आपकी पॉपुलेशन क्या है, किन मरीजों के ऊपर, किन लोगों के ऊपर आप अपनी स्टडी करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, डिफाइन कंडीशन और डिजीज इंक्लूडिंग एक्सप्लिसिट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, पॉपुलेशन एंड सेटिंग ऑफ इंटरेस्ट, एज, रेस, सेक्स, कम्युनिटी, हॉस्पिटल, आउटपेशेंट। ठीक है। टेक्निकली पॉपुलेशन के अंदर आपके प्रोटोकॉल के अंदर ये सारी चीजें डिफाइंड होनी चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं कि मैंने फॉर एग्जांपल लंग कैंसर वाले पेशेंट्स ले लिए, तो आपका सवाल है कि जी क्या स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, बड़ा पेट शू से दी जाने वाली एग्जांपल है। इसके अंदर आपकी पॉपुलेशन क्या है, आपकी पॉपुलेशन लंग कैंसर के पेशेंट्स हैं। ठीक है। अब पीको जो आपको सिस्टमैटिक रिव्यू आप करते हैं ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो बस लंग कैंसर वाले पेशेंट मेरी पॉपुलेशन है। उसमें आपने ये बताना है कि आपके पास लंग कैंसर जो होगा वो डायग्नोज कैसे होगा पेशेंट्स को। आपने कहना है कि जी प्रॉपर आई डोंट नो व्हाट डू दे डू फॉर लंग कैंसर, मे बी CT स्कैन ही करते हैं। CT स्कैन डॉक्यूमेंटेड
लंग कैंसर के जो पेशेंट्स होंगे या जिनकी स्टेजिंग डिटरमिन हुई होगी, प्रॉपर आप लिखेंगे कि इस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के थ्रू जो फॉल करेंगे वो मेरी पॉपुलेशन होंगे। ठीक है, उसके अंदर एज ग्रुप मैं ये रखूंगा, रेस जो है उसकी मैं कोई फिल्टर्स नहीं लगा रहा, मैं उनकी क्यों इस चीज पे फिल्टर नहीं लगा रहा कि उनकी हॉस्पिटल प्रेजेंटेशन हुई है या स्क्रीनिंग में उनका पता चला। ये सारी चीजें आपने अपनी पॉपुलेशन में डिफाइन करनी होती हैं। ठीक है, सिमिलरली आ जाए कि टाइप्स ऑफ कंपैरिजन ग्रुप्स। ठीक है, फॉर ट्रायल्स प्लेसिबो स्टैंडर्ड थेरेपी, नो ट्रीटमेंट फॉर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज, नो एक्सपोजर, नॉन केस। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कंपैरिजन ये है कि प्लेसिबो, अब छोड़े इनकी डिटेल्स में, आई डोंट थिंक सो दैट कम्स इनटू द वर्कशॉप स्कोप ऑफ द वर्कशॉप। सिंपल सी बात ये है कि कंपैरिजन ग्रुप कोई आपने ड्रॉ किया होना चाहिए, इसके बगैर भी हो जाता है, कंपेरेटर आपका ना भी हो तो भी हो जाता है, बट हो तो बेहतर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि मैं स्मोकिंग को कंपेयर कर रहा हूँ, चलिए इसमें एग्जाम्पल में इतना अच्छा फॉल नहीं करेगा, हम ऐसा कर लेते हैं कि हम दो ड्रग्स को कंपेयर कर लेते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। ठीक है, लेट्स से मैं एटिनोलॉल को कंपेयर कर रहा हूँ वेरापामिल के साथ। ठीक है, फॉर एनी हार्ट डिजीज, फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, अब मैं कहूंगा जी एटिनोलॉल जो है वो मेरी इंटरवेंशन है और उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ वेरापामिल के साथ। ठीक है, तो ये कंपैरिजन ग्रुप का रूल है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा सिंपल सा आपका ऑर्डिनरी सा मेटा हो जाएगा जो कि इजीली आप कर लेंगे, अगर नहीं है तो भी इट्स ओके। तो उसको उसको सिंगल आर्म मेटा कहते हैं, वो भी आप उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोजर्स और इंटरवेंशंस। ठीक है, आई मैंने आपसे कहा था कि आई को आप रिप्लेस कर सकते हैं ई के साथ, आई इंटरवेंशन भी हो सकता है, और अगर आप इसको पी ई सी ओ करके एक्सपोजर करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोजर अगर आपका है तो फिर आपको बताएंगे कि एक्सपोजर कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये 15 साल पहले हुआ था, 20 साल पहले हुआ था, इंटरवेंशन आपने अगर दी तो सबक्यूटेनियस थी, इंट्रावेनस थी, कोई और उसका कोई और रूट था, अगर डोज और इंटेंसिटी क्या थी, कितनी डोज लगाई, दिन में कितनी बारी लगाई, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर और थेरेपी कितने अरसे के लिए आपने लगाई, ये सब कुछ आपको अपने प्रोटोकॉल में डिफाइन करना होगा कि वो है जो मैं ले रहा हूँ। फिर टाइप्स ऑफ आउटकम्स, मैं देख क्या रहा हूँ। ठीक है जी, ये पॉपुलेशन मैंने सेलेक्ट कर ली, ये मैंने रिस्क फैक्टर, ये मैंने इंटरवेंशन सेलेक्ट कर ली, उसको मैंने इसके साथ कंपेयर किया, लेकिन किन चीजों की टर्म्स में मैं उस क्वेश्चन को गेज करूंगा, तो वो आपके आउटकम्स है। फॉर एग्जाम्पल ORR, ओवरऑल रिस्पॉन्स रेट होता है, कंप्लीट रिस्पॉन्स। ठीक है, चेंज फ्रॉम बेस लाइन कुछ होते हैं, ये सारे आउटकम वेरिएबल्स हैं। ठीक है, सर्वाइवल में आप आ सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल, ओवरऑल सर्वाइवल, ये सारे आपके आउटकम्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि अब हम अपनी पीको के ऊपर आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए डिसाइड किया था, बड़ा पेट किस्म का क्वेश्चन है, हम जो जिस क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे फॉर मेकिंग द पीको, इट इज एफिकेसी ऑफ बीटा ब्लॉकर्स इन हार्ट फेलियर पेशेंट्स। अब आप में से कोई है जो मुझे बता सकता है कि इसमें पॉपुलेशन हमारी कौन सी है इस सवाल में, एफिकेसी ऑफ बीटा ब्लॉकर्स इन हार्ट फेलियर पेशेंट्स? कोई भी चैट बॉक्स में बता। हमसा चैट बॉक्स खुला हुआ है? जी, चैट बॉक्स हमने कर दिया था ओपन। ओके, अगर कोई बता सकता है हार्ट फेलियर पेशेंट्स, बिल्कुल हार्ट फेलियर पेशेंट्स ऐसे ही है, तो आपके पास हार्ट फेलियर पेशेंट्स आपकी पॉपुलेशन है। ठीक है, अब जब आप लिखने पे आएंगे तो आप पूरा हार्ट फेलियर का बताएंगे कि हार्ट फेलियर से व्हाट डू आई मीन, मैं 55 की ये इजेक्शन फ्रैक्शन पे हार्ट फेलियर ले रहा हूँ या मैं 50 की इजेक्शन फ्रैक्शन पे हार्ट फेलियर ले रहा हूँ। बहुत सारी जगहों पे 40 तक भी वो हार्ट फेलियर नहीं लेके जाते। स्टेज 1 हार्ट फेलियर को भी वो मेटा एनालिसिस की सेक के लिए हार्ट फेलियर काउंट नहीं करते, क्योंकि वो यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है। ठीक है, मैं सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स ले रहा हूँ या नॉन सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स ले रहा हूँ, उनको वो डायग्नोज कैसे हुए हैं। ठीक है, वो इको के ऊपर मैंने उनको डायग्नोज कर दिया हार्ट फेलियर से, या मैं आगे एडवांस्ड इमेजिंग पे भी मैंने शर्त लगाई है कि ये होगा तो मैं हार्ट फेलियर डायग्नोज करूंगा। ये सारी डिटेल स्टडीज में होनी चाहिए। ठीक है, तो पॉपुलेशन हमारे पास डेफिनेटली हार्ट फेलियर है। दूसरी चीज मुझे बता दें आप, एफिकेसी ऑफ बीटा ब्लॉकर्स इन हार्ट फेलियर, इसमें इंटरवेंशन क्या है? इट इज वेरी ऑब्वियस, एक इंटरवेंशन, आपका कंपेरेटर भी नहीं है कि आप कंफ्यूज होंगे, एक ही हम उनको दवाई दे रहे हैं। क्यों, मुझे बता दे अगर कमेंट्स में। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, एक्सीलेंट। ठीक है,
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स हमारी जो है वो है इंटरवेंशन है, ठीक है। एक्सपोजर यहाँ पे हम नहीं कहेंगे, ठीक है। एक्सपोजर यूजली रिस्क फैक्टर का होता है। ये जब आप डिटेल्स आगे हमारी सीरीज होगी उसमें आएंगे तो आपको पता लगेगा कब आपने एक्सपोजर यूज करना है, कब इंटरवेंशन यूज करना है, ठीक है, कब आपने बाकी चीजें यूज करनी है, ठीक है, कब आपने रिस्क फैक्टर की टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। तो लेकिन इस सेक के लिए वी विल कॉल इट इंटरवेंशन। इंटरवेंशन बीटा ब्लॉकर्स हो गए। अब मैं अगेन उस डिटेल में नहीं जा रहा। अब जब आप डिफाइन करेंगे तो आपने प्रॉपर बताना है कि ओडी है, पीडी है, कितनी कौन सा बीटा ब्लॉकर कौन ले रहे हैं, कितनी बारी दिन में ले रहे हैं, कितनी डोज में ले रहे हैं, कैसे ओरल ले रहे हैं या आईवी ले रहे हैं, क्या ले रही है, सब आप बताएंगे। एंड तीसरी चीज कंपेरेटर। डू यू थिंक देयर इज एनी कंपेरेटर इन माय क्वेश्चन राइट नाउ? एफिकेसी ऑफ बीटा ब्लॉकर्स इन हार्ट फेलियर। देयर इज नो कंपेरेटर। अगर मैं ये करता ना एफिकेसी ऑफ बीटा ब्लॉकर्स वर्सेस डिजिऑक्सिन, ठीक है, या मैं कर देता आई डोंट थिंक सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हार्ट फेलियर में नहीं यूज होते, कोई भी और ड्रग जो हार्ट फेलियर में यूज, फॉर एग्जांपल एस इनहिबिटर्स वर्सेस बीटा ब्लॉकर्स, तो हमारे पास कंपेरेटर होता। फिर एक को हम इंटरवेंशन के तौर पे डिफाइन करते और दूसरे को हम कंपेरेटर के तौर पे डिफाइन करते, या उसको हम कंपैरिजन ग्रुप बोलते या कुछ भी बोलते। ठीक हो गया। ये है। अब ये हमारे आपको हमें हमें पता लग गया कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, हमें पता लग गया हमारी इंटरवेंशन क्या है, हमें पता लग गया हमारा कंपेरेटर फिलहाल कोई भी नहीं है, और हमें पता लग गया कि अब हमारी आखिरी चीज क्या रह गई है, ओ आउटकम्स। तो आउटकम हम ऐसे जब भी डिफाइन नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे कि जी हमारे आउटकम्स जो है वो एफिकेसी है। देखिए, दो यूजली जो मेटा एनालिसिस होते हैं वो दो चीजों पे होते हैं, एक सेफ्टी होती है और एक एफिकेसी होती है, ठीक है। सेफ्टी वर्सेस एफिकेसी। क्योंकि अगर हमें सारी चीजें इसमें ऐड करता जाता ना तो फिर ये पीको टेबल हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता और इट वुड हैव बीन टू मच फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैंने उसको क्या किया है, मैंने उसको मतलब सिर्फ हमने एफिकेसी रखा है। तो हमारा टॉपिक है एफिकेसी ऑफ बीटा ब्लॉकर्स इन हार्ट फेलियर पेशेंट्स, अ सिस्टमैटिक रिव्यू, ठीक है। और हमारा जो आउटकम है वो एफिकेसी है, सही है। तो ये चक्कर है। अब ये सारी कहानी समझाने का मकसद था आपको मैश समझाना कि मैश क्या होता है। मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स यहां से भी मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। इज अ कंट्रोल्ड एंड हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड वोकैबुलरी प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। होता इस तरह से है कि पबमेड के पास लाखों नहीं करोड़ों में आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो पबमेड ने क्या किया हुआ है, पबमेड ने एक बैंक बना दिया, ठीक है। और मतलब उसने एक वर्ड्स का बैंक बनाया और जो भी उनके पास नया आर्टिकल आता है उसको वो उस उस मैश के बैंक में से कुछ वर्ड्स अलॉट कर देते हैं, ठीक है। और उसकी मदद से पबमेड के ऊपर आर्टिकल छानना आसान हो जाता है, ठीक हो गया। ये होती है मैश, सिनोनिमस टू एम्प्टी टर्म्स इन एमबीएस, ठीक है। आप अब यही देखिए, मैश का जो वर्ड है ना, ये वाला मैश, दैट इज एक्सक्लूसिव फॉर पबमेड, ठीक है। यही काम के डेटाबेस जो मैनेज कर रहे हैं बंदे, वो हर आर्टिकल को 2-3 मेन टर्म्स दे देंगे जिससे उनकी शिनाख्त होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना कि हम 5 सालों के बच्चे हैं, 5 साल के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। ये तो नहीं होता ना कि हमें बस आरएमयू के अंदर डाल दिया जाता है, आगे हमारी मजीद सेग्रीगेशन नहीं होती। हमारी ईयर्स की बेस पे सेग्रीगेटेड होते हैं हम, कुछ फर्स्ट ईयर के होते हैं, कुछ सेकंड ईयर के होते हैं, कुछ थर्ड ईयर के होते हैं। इसी तरह डेटाबेस के अंदर मैश की बेस के ऊपर आर्टिकल्स डिवाइड हुए होते हैं, ठीक है। और उस पर्टिकुलर मैश के थ्रू आप उस रेलेवेंट डोमेन के आर्टिकल्स को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। दिस इज व्हाट मैश इज। तो इट इज सिनोनिमस टू एंट्री टर्म्स इन एमबीएस। एमबीएस इसको जो है वो एंट्री कहता है, सिनाहिल आई थिंक सब्जेक्ट टर्म्स कहता है, और कॉकरेन आई थिंक सो मैश ही कहता है। तो ये लेकिन बहरहाल हमारा जो इसको स्कोप है दैट इज मैश। तो सिनोनिमस कीवर्ड्स इन एंट्री टर्म्स। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। कीवर्ड्स क्या होते हैं? होता अक्सर इस तरह से है कि कुछ टॉपिक्स नए आते हैं। जैसे अभी हम एक मेटा एनालिसिस पे काम कर रहे थे, इट वाज अबाउट इंटरएट्रियल शंट्स, इंटरएट्रियल शंट डिवाइसेस, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई हैं। अभी तक पबमेड ने उसके लिए कोई मैश इजाद ही नहीं किया। स्पेशली रिसेंट लिटरेचर के अंदर जो चीजें होती हैं उसके अंदर इस तरह होता है कि पबमेड ने उनको अभी तक कुछ मैश अलॉट नहीं किए होते, तो एब्स्ट्रैक्ट्स ऐसे ही पड़े होते हैं। लेकिन अगर एक आर्टिकल आया है पबमेड वालों के पास और उन्होंने देखा कि किसी मैश में फिट नहीं हो रहा ना, उन्होंने उसी एब्स्ट्रैक्ट में से 2-3 वर्ड्स निकाल के उसको कीवर्ड्स दे देने हैं। तो इन केस कोई रिसेंट लिटरेचर है या कोई ऐसा इग्नोर्ड कंपोनेंट है जिसके ऊपर आपको मैश नहीं मिल रहा,
या जिसके ऊपर लिटरेचर कम है, इनफैक्ट बेशक वो पुराना टॉपिक है लेकिन उसके ऊपर इनफ लिटरेचर नहीं है, तो उस केस में आप कीवर्ड्स की तरफ जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट के एंड के ऊपर हेडिंग होती है कीवर्ड्स की। जब आप ज्यादा नीचे पबमेड पे जाते हैं, अभी आपको दिखा देंगे, तो आपके पास मैश वर्ड्स होते हैं लेकिन इमीडिएटली नीचे कीवर्ड्स होते हैं, ज्यादातर होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते। और जब आप डेटाबेस सर्च करते हैं मैश के ऊपर, ठीक है, मैश का अलग आपको मैश के उस खाने में जाना पड़ता है पबमेड के ऊपर, तो उसके साथ अक्सर आपके पास एंट्री टर्म्स आती है। वो ये इंडिकेट करती हैं कि ये चीजें जो हैं ये इस मैश से मिलती जुलती हैं लेकिन स्लाइटली डिफरेंट हो सकती हैं। उन सब की सब एंट्री टर्म्स को, बेशक वो 50 भी हैं, आपको वो अपनी पीको टेबल में डालनी पड़ती हैं और आपको उसको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। ठीक है, अभी कीवर्ड्स और एंट्री टर्म्स थोड़ा सा और जो है वो इजी हो जाएगा जब हम जो है पबमेड पे चलेंगे। ठीक है, मेरी स्क्रीन मूव कर रही है? जी जी, मूव हमजा कर मेरी रही है, स्क्रीन? कर रही है। ओके, तो अभी हम पबमेड पे जाते हैं, ये पबमेड का इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे, एडवांस्ड में भी हम जाएंगे, लेकिन पहले हम लोग नीचे जाते हैं मैश डेटाबेस के अंदर। हमारा क्वेश्चन क्या था? एफिकेसी ऑफ एफिकेसी ऑफ बीटा ब्लॉकर्स इन हार्ट फेलियर पेशेंट्स। ठीक है, पहले रुके, मैं आपको एक जरा मॉडल सा वो दिखा देता हूँ, पिको मॉडल। हाँ, ये देखिए, ये होता है पिको टेबल दिखाने के लिए। अब यहाँ पे पेश PICOS, इसमें एस भी डला हुआ है, चलें एस हम भी डाल देंगे। पबमेड, मैश टर्म्स, एंट्री, कॉकरेन, सिनाहिल, कीवर्ड्स, सर्च डेट्स, बिगिन, ये सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं पिको टेबल के। अभी फिलहाल ये खाली है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अभी हम थोड़ी देर में हम हैंड्स ऑन इसको भर देते हैं। ओके, सो अब हम, ये आपने देख लिया, आपको नजर आ गया ये सारा। अभी हम जाते हैं वापस पबमेड के ऊपर। देखिए, ये मैश है। सबसे पहले हम पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पॉपुलेशन को, एक मिनट मुझे दें, एक मिनट बस। ठीक है, तो अब हमारी पॉपुलेशन क्या थी? हमारी पॉपुलेशन थी हार्ट फेलियर। तो हम देखें, इट हैज टू बी मैश। यहाँ पे आपको मैश नजर आ रहा है ना, ये मैश वाला ही होना चाहिए क्योंकि अभी आप मैश सिलेक्ट कर रहे हैं। मैं डालता हूं हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर। ठीक है, हार्ट फेलियर आ गया। देखें, ये मैश में है ना? ठीक है, ये मैश में है, तो आपने हार्ट फेलियर को पकड़ा और आपने इसको यहाँ पे, ये अब देखिए, अगर ये मैश ना होता ना तो ये आ जाता नो टर्म्स फाउंड या नथिंग कुछ इस तरह, लेकिन ये आ गया तो मतलब ये मैश डेटाबेस में एक प्रॉपर वर्ड इंट्रोड्यूस्ड है। ठीक है, इसको हम एक ओपन लिंक न्यू टैब में भी कर देते हैं और इसको मैं डाल देता हूँ ऐड टू सर्च बिल्डर। ठीक है, अब देखिए, हार्ट फेलियर मैश है, यहाँ पे ये पबमेड सर्च बिल्डर में आ गया, यहां से आपने इसको कॉपी करना है। ठीक है, एंड आपने ना इसको पबमेड पे भी हम कर रहे हैं और हमारी पेशेंट्स जो हैं वो है मैश टर्म्स हैं, तो यहाँ पे आपने इसको डाल देना। ये देखिए, हार्ट फेलियर मैश, ठीक हो गया। लेकिन अब एक और मैंने आपको बताया कि दिस इज नॉट इनफ। ये खाना आपको नजर आ रहा है कीवर्ड्स का जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको अपने पिको टेबल में इसको भी भरना पड़ता है। इसके लिए व्हाट यू विल बी डूइंग इज, हार्ट फेलियर आपने डाल दिया, आपने यहाँ पे लिख दिया ऐड टू सर्च बिल्डर। ओ सॉरी, ऐड टू सर्च बिल्डर आपने कर दिया, आपने कर दिया सर्च पबमेड। ठीक है, 1,45,822 रिजल्ट्स। ये देखें एंट्री टर्म्स, ये होती हैं एंट्री टर्म्स, नजर आ रही है जो मैंने हाईलाइट किया है। इन ये सब के सब आपकी कीवर्ड्स में इंक्लूडेड होनी चाहिए। यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, एक तो हमने टॉपिक भी बहुत ही ब्रॉड लिया है, ठीक है, जो हमें ऑलरेडी पता है, बट आई वाज ट्राइंग टू कीप इट सिंपल। तो आपने अभी फॉर नाउ हम पहली 3 टर्म्स डालेंगे। ठीक है, ये कार्डियक फेलियर आपने उठाया, कॉपी किया और आपने अपने मैश में डाल दिया। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग खराब ना हो इसलिए मैं इसको यहाँ से ये रिमूव कर। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरी एंट्री टर्म मैंने डाली हार्ट डिकम्पनसेशन। तीसरी एंट्री टर्म भी मैं डाल देता हूं, दैट इज मायोकार्डियल फेलियर डाल देते हैं। ठीक है,
अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि ये कोई 10-15 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो 15 टर्म्स है, वो सारी की सारी आपने अपने पीको के अंदर डालनी है, ठीक है, कीवर्ड्स के अंदर आपने डालनी है यहाँ पे। बट क्योंकि हमारी वर्कशॉप टोटल 45 मिनट्स की, जिसमें से जस्ट है 15 मिनट्स लेफ्ट, तो मैं ये सारी नहीं डाल रहा। बट आई सपोज मैं ये कर लेता हूँ कि मैंने ये वाला जो भी 2-3 के साथ किया, ये मैंने सबके साथ किया, ठीक है। और ये हमने सर्च पबमेट कर दिया, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे एडवांस्ड में जाते हैं, ठीक है। और वो जो टर्म्स मैंने यहाँ पे कॉपी की थी ना, कार्डियक फेलियर, यहां से आपने वैसे आपको एक मजे की बात बताऊं, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द पीको टेबल हम उन सबको यहाँ पे डालते हैं। आप वहां से डायरेक्ट दूसरी टैब में खोल के भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आपने एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए कोशिश करनी होती है कि हमेशा आप कॉपी पेस्ट ही करें। देर इज अ डिफरेंस कि अगर यहाँ पे कार्डियक फेलियर जो है ना, कि एक बैक स्पेस भी ज्यादा हो गई है तो इट्स डिफरेंट नाउ। हार्ट डीकम्पनसेशन का डी छोटा हो गया, इट्स डिफरेंट नाउ, ठीक है। ये फिर वो चीज नहीं रहेगी जो हम चाह रहे हैं। तो अभी हम लोग ऐसा करते हैं कि कार्डिक फेलियर हमने आई थिंक कॉपी कर लिया था, हमने कार्डिक फेलियर कॉपी किया और हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है। इसको हमने कहा सर्च करो जी कार्डिक फेलियर को। ये कार्डिक फेलियर पे 3,19,211 आर्टिकल्स आ गए। फिर हम एडवांस में गए, दूसरा हमारा था हार्ट डीकम्पनसेशन, ठीक है। उसके ऊपर हम गए, उसको हमने दोबारा इंटरनेट सर्च टर्म किया, और ये देखिए इस टाइम ये ऑल फील्ड्स, इट्स नॉट मैश, इट्स नॉट टाइटल एब्स्ट्रैक्ट, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। आपने इसको भी सर्च कर लिया हार्ट डीकम्पनसेशन, ठीक है। और तीसरी आपने किया मायोकार्डियल फेलियर, नहीं हुआ, आपने इसको यहां से कॉपी किया एंड आपने फिर एडवांस में आप गए और आपने इसको यहाँ से मायोकार्डियल फेलियर भी कर दिया, ठीक है। अब देखिए 3,19,211 आर्टिकल्स। अब ये आपके पास देखिए एक मैच टर्म्स है और 2 एंट्री टर्म्स हैं। अब अगर आप इस पॉपुलेशन को प्रॉपरली सर्च करते ना, तो ये कोई आपके पास 15 एंट्रीज यहाँ पे हो जानी थी। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने नहीं करना कि आप पता लगे पहली 2 उठाएं और बाकी छोड़ दें, आर्टिकल्स मिस हो जाते हैं इस तरह, ठीक है। अब मैंने किया ऐड क्यूरी, नहीं नहीं कोशिश क्या करें, पहले मैश वाली क्यूरीज है, ऐड क्यूरी। अब देखिए आपने डालना है ऐड विद और, क्योंकि ये सारी सिनोनिमस टर्म्स है ना, तो आपने और लगाना है। आई होप कि आपको बूलियन ऑपरेटर्स आते होंगे इस टाइम पे, ठीक है। अगर नहीं आते तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 3 मेन बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट। नॉट इतना ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन एंड और बहुत यूज होते हैं। ऐसी आप एंड आप वहां पे लगाते हैं जब आप ऐसे आर्टिकल्स चाह रहे हो कि जिसमें जिन 2 चीजों में आप एंड लगा रहे हो उनमें दोनों वो हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा चाह रही हैं कि मुझे ऐसे आर्टिकल चाहिए जिनमें हार्ट फेलियर भी हो और बीटा ब्लॉकर्स का भी जिक्र हो, तो फिर आप एंड से कंबाइन करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे चाह रहे हैं कि ऐसे आर्टिकल मुझे मिले जिनमें हार्ट फेलियर का भी जिक्र हो, या मायोकार्डियल फेलियर का जिक्र हो जाए, या हार्ट डिकम्पनसेशन का जिक्र हो जाए, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का जिक्र हो जाए, तो आपको और लगाना पड़ेगा, ठीक है। मायोकार्डियल फेलियर हो गया और आप हम लगा देते हैं ऐड विद और। ये आपकी पहली सर्च क्यूरी बन गई। सर्च आपने किया, देन यू गो विद 3,20,264 रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन के लिए हमने सपोज कर लिया कि 15 की 15 हम फिलहाल डाल चुके हैं। अब हमारा पॉपुलेशन के लिए इन 5 में से एक एस्पेक्ट पूरा हो गया। अब हम जाते हैं इंटरवेंशन के ऊपर, ठीक है। अब वापस हम मैश में आ गया। मैंने आपको क्या कहा था कि बीटा ब्लॉकर्स हैं, एड्रीनर्जेनिक बीटा ब्लॉकर्स, ये एक ही चीज है, ठीक है। ये आ गए, ये भी हमारे पास मैश पे अवेलेबल है। आई मेड श्योर कि हम वही टर्म्स करें जो मैश पे अवेलेबल है, ठीक है, बिकॉज इट्स जस्ट अ बिगिनिंग एंड इट्स जस्ट द पहला स्टेप। यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट किया और सबसे पहले आपने कर दिया ऐड टू सर्च फिल्टर। यहां से कॉपी करके पहला काम आपने करना है कि आपने अपने पीको टेबल में डाला, ठीक है। आपने पीको टेबल में आए, इंटरवेंशन पे आ गया। अब आपने इसकी एंट्री टर्म्स पे जाना है, ठीक है। इसको आपने क्लिक किया, अच्छा नहीं उसको ऊपर हमने सर्च फॉर्मेट भी कर देते हैं, ठीक है। 4,43,278 रिजल्ट, ठीक है। अब देखें
एड्रीनर्जेनिक बीटा एगोनिस्ट, इन चीजों में मन जा रहा रिस्ट्रिक्ट टू मैच मेजर टॉपिक, ये इसका अलग सीन होता है कि कुछ होते हैं वो उसको एडिशनल टर्म्स के तौर पे रजिस्टर करती है पबमेट, कुछ को वो कहती है हाँ ये इसका मेजर टॉपिक है। अगर आप सिर्फ वो कर रहे हो तो यहाँ पे आप लगाएंगे तो 2-3 हज़ार और कम हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एंट्री टर्म्स पे आ जाए, कितनी ज्यादा एंट्री टर्म्स है, कोई 50-60 एंट्री टर्म्स है। जो कॉकरेन की रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक ये सारी की सारी एंट्री टर्म्स आपके पीको में होनी चाहिए। ठीक है, आपको पीको में ये सब होनी चाहिए, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं सिर्फ 3 ले रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉपी, और इसको अभी आपने कीवर्ड्स में डालना है। देखिए ये मैश है और ये कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स एंट्री टर्म्स जो है फॉर नाउ हम लोग उनको कहते हैं कि वो सेम ही है। एड्रीनर्जेनिक बीटा एगनिस्ट्स, पहले 3 सिर्फ लेते हैं। ठीक है, बीटा और ये बिल्कुल सिमिलर सिमिलर होंगे, ये देख के आपने छोड़ नहीं देना कि जी ये जो एक एक कॉमा करके इन्होंने फर्क कर दिया, इसकी बेस पे फर्क आपके रिजल्ट्स पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे लेना जरूरी है। और उसके बाद हम और एक और भी उठा लेते हैं, ब्लॉकेटर वाला उठा लेते हैं। ठीक है, अच्छा अभी जो हमने पॉपुलेशन के साथ गेम प्ले किया है ना, जो पॉपुलेशन के साथ अभी हमने गेम प्ले की है ना, वही एग्जैक्टली अब हम प्ले करेंगे उसके साथ अपना इंटरवेंशन के साथ। देखें, अच्छा अब हम वहीं से उठा लेते हैं, यहाँ पे वो आया नहीं, आई थिंक बैक कर दिया था मैंने। ठीक है, इसको यहाँ पे हम कॉपी करते हैं। ठीक है, अब जब मैं वहां से बेशक कॉपी भी करूँ, ये मैश के ये ब्रैकेट लगे हुए हैं ना, तो ये मैश ही पे सर्च होगा। ठीक है, ये 40 ये हो गया, अब ये इसकी हिस्ट्री में आएगा। ठीक है, देखा अब ये आ गया। अब हम उसकी जो 3 टर्म्स हमने वहां से ली थी ना, वही हम आपको वो करके दिखाता हूँ। कॉपी, सर्च, 96,000। देखिए कहने को वो सेम लग रहा था, लेकिन सिर्फ इसका सीक्वेंस बदलने से ऑलमोस्ट रिजल्ट डबल हो गए, डबल से भी बल्कि ज्यादा हो गए। ठीक है, कॉपी, क्या 96,000। अच्छा उसके बाद आखिरी वाला हम ब्लॉकेड, ठीक है, इसको भी हमने सोच लिया। अब हमने, अब ये काम आपने सारी की सारी के साथ करना है जब आप अपना मेटा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम अब देखिए ये जो नंबर 4 वाली क्यूरी है ना, जिसपे हमारे पास 3,20,264 रिजल्ट है, ये हमने, वो हमारी तमाम पॉपुलेशन इस पे आ गई है, और हमारी इंटरवेंशन जो है उसके लिए अब हम डालते हैं, इसको हम करते हैं ऐड क्यूरी, और ये तीनों ऊपर वाली हम ऐड विद और किए जाएंगे, ऐड विद और, ऐड विद और। ठीक हो गया, और इसको हम सर्च करेंगे 96,000 रिजल्ट। ठीक है, अब इंटरवेंशन के लिए 96,000 रिजल्ट आ गए हैं, और पॉपुलेशन के लिए 3,20,000 समथिंग रिजल्ट आ गए। देखिए अब मैं वापस जाता हूँ मैश के ऊपर। अब मैं कहता हूँ अच्छा चले, अब हम थोड़ा सा हम वो कर लेते हैं कंपैरिजन, हमने फिलहाल कुछ किया नहीं है, आउटकम्स को फॉर नाउ मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर नाउ हम आउटकम्स को ड्रॉप कर देते हैं, ये चलें ऐसा करते हैं, एक दो बल्कि चलें ड्रॉप कर देते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम। ठीक है, ठीक है, अब हम ऐसा, अब फॉर एग्जांपल आउटकम अगर आप करेंगे ना, तो आउटकम आप कर देंगे, फॉर एग्जांपल मैं एफिकेसी देख रहा हूँ, तो एफिकेसी इजीली आपको आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं डाल के देखता हूँ एफिकेसी, देखें एफिकेसी ट्रीटमेंट, ये वही सीन होगा कि ये आपकी मैश टर्म आ जाएगी और इसके नीचे आगे ट्रीटमेंट्स हो जाएंगे। ये भी टेक्निकली आपको डालनी चाहिए, बट हम ऐसा करते हैं कि हम स्टडी टाइप पे चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ नहीं भाई, मैं बड़ा हाई क्वालिटी मेटा एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ रैंडमाइज्ड
कंट्रोल्ड ट्रायल्स चाहिए, ठीक है, नॉट एज अ टॉपिक। अगर आप एज टॉपिक पे जाएंगे तो वो जो कमेंट्स होते हैं कि किस तरह होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, वो वाला आ जाएगा। पब्लिकेशन टाइप मुझे चाहिए, बिल्कुल जी, ऐड टू सर्च बिल्डर, ये आपने कॉपी यहाँ से करके, ये सिर्फ मुझे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स चाहिए, ये आपने यहाँ पे करना, ठीक हो गया। अच्छा, इसके नीचे एंट्री टर्म्स मोस्ट प्रोबेबली नहीं होनी, ठीक है, इसके नीचे आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। आप एडवांस सर्च बिल्डर में जाके आप खुद ये टर्म्स बना सकते हैं, ठीक है। एक मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ, मैं आपको करता हूँ कि प्लेसिबो कंट्रोल ट्राई कर देता हूँ, कंट्रोल प्लेसिबो रैंडमाइज्ड ट्राई, ठीक है। 1 लाख 1,81,665, ठीक है। तो अभी बहरहाल, और ये चीजें टेक्निकली जो है ना, मुझे उधर कॉपी करनी चाहिए थी, प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल वाली वर्डिंग, ठीक है। प्लेसिबो रैंडमाइज ट्रायल, अब मैं खुद हाथ से लिख लेता हूँ क्योंकि मैंने इसको कॉपी नहीं किया, तो ये भी आप कर लें, प्लेसिबो रैंडमाइज्ड ट्रायल, ठीक है। तो अब आप, अगर आपको, अब यहाँ पे लेसन क्या है कि अगर आपको एंट्री टर्म्स नहीं मिलती है ना, तो आपने कुछ चंद एक टर्म्स अपने से थोड़ा दिमाग यूज करके ना, इसको पबमेड TW कर देगा ब्रैकेट में, TW मींस टेक्स्ट वर्ड, कि आपने खुद अपना टेक्स्ट इजाद किया, दैट इज ओकेश टू, ठीक है। हर चीज के ऊपर मैश नहीं होती, हर चीज के ऊपर कीवर्ड्स नहीं होते, हर चीज के ऊपर एंट्री टर्म्स नहीं होती, तो ये भी आप कर सकते हैं, बट पहली प्रायोरिटी डेफिनेटली आपकी वो होनी चाहिए। अब हम जाते हैं सर्च स्ट्रेटेजी के ऊपर, ठीक है। अब हमारा अच्छा वाला पार्ट आ रहा, एक मिनट, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को हम डालते हैं ऐड क्यूरी, ठीक है, और इसको हम डालते हैं प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल को ऐड विद और, ठीक है। ये और भी बहुत सारे बन सकते हैं, कंट्रोल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, वो सारे 5-6 वैसे यूजली आपको डालने चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे टाइम नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं, और सर्च किया, ठीक है, 6,45,000, ठीक है। अब देखिए, एक क्यूरी जो हमारी मेन स्टडी टाइप की है उस पर 6.5 लाख रिजल्ट्स हैं, हमारी इंटरवेंशन की क्यूरी पे 96,000 रिजल्ट्स हैं, और हमारी पॉपुलेशन की क्यूरी पे 3,20,000 रिजल्ट्स हैं। अब मैं इन सबको कंबाइन करूंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं पॉपुलेशन को डालता हूं ऐड क्यूरी, ठीक है। उसके बाद मैं डालता हूं, अब मैं क्या करूंगा, ऐड विद एंड लीड्स टू रिडक्शन ऑफ रिजल्ट्स, ऐड विद एंड, ये जो है ना, ये इसको यहां से आपने सारी को कॉपी करना है, और ये आपकी टेक्निकली सर्च स्ट्रेटेजी है पबमेड के लिए, और आपने अपने पीको टेबल के जहां पे ये सर्च स्ट्रेटेजी लिखा है ना, इसके बिल्कुल नीचे इसको पेस्ट कर देना, ये आपकी सर्च स्ट्रेटेजी है जो आप सप्लीमेंट्री फाइल के अंदर अपने मेटा एनालिसिस में पब्लिकेशन के लिए जब भेजेंगे तो आप देंगे। अब देखते हैं कितने रिजल्ट्स आते हैं, 1,01,166 ओनली। अब देखा है हमने किस तरह से 3-3.5 लाख रिजल्ट्स को, 6-6.5 लाख रिजल्ट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करके सिंपल एक डिसर्नेबल नंबर जिसको आप डील कर सकते हैं वो आपने बना दिया, 1,01,166। अब इसकी सिंपल अगला तरीका ये होगा, वो हमारा टॉपिक नहीं है कि हम इसको सेंड टू करके साइटेशन मैनेजर पे भेज के इसकी स्क्रीनिंग स्टार्ट करेंगे, 6.5 लाख आर्टिकल्स को पढ़ के आप स्क्रीन नहीं कर सकते। ये सर्च स्ट्रेटेजी रन करने का मकसद ये होता है कि वो सारे आर्टिकल जो आते हैं वो आपको रीड करने पड़ते हैं कि ये मेरे सिस्टमैटिक रिव्यू में घुस सकते हैं या नहीं घुस सकते। 6.5 लाख, 3 लाख या 90,000 आर्टिकल रीड करना इज आउट ऑफ क्वेश्चन, इम्पॉसिबल है। तो ये टेक्निक्स आप यूज करके जो मैंने आपको अभी सिखाई है विद मैश टर्म्स, एंट्री टर्म्स वगैरह वगैरह, आप देखें कि हमने ऑलमोस्ट 6.5 लाख रिजल्ट्स को नैरो डाउन कर दिया 1,01,166 के ऊपर। और ये आप इसकी स्क्रीनिंग शुरू करेंगे, पहले इसकी प्राइमरी स्क्रीनिंग होगी, सेकेंडरी स्क्रीनिंग होगी, और ये जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, आप अपनी सप्लीमेंट्री फाइल के अंदर ये वाली सर्च स्ट्रेटेजी जो है ना वो देंगे, ठीक है। एक और भी आप दे सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये आप जब जाते हैं ना, एक आपकी जब सर्च टर्म आएगी, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये लंबी वाली होती है, ये वाली जो सारी है, ये भी आप कॉपी कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन यूजली इसको नहीं किया जाता, ठीक है। ओ सॉरी, बस इसीलिए नहीं किया जाता कि ये हाल होता है, ठीक है। बहरहाल इस सबको अगर आपने नहीं, ठीक है, हाँ, यहाँ पे ये कॉपी हो गई, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, और आप इसको अपने पीको टेबल में डाल सकते हैं सर्च स्ट्रेटेजी, और इसके बाद आप लिख सकते हैं डिटेल्ड सर्च, कहाँ गया,
स्क्रैप जी, ठीक है, उसके अंदर आप इसको पुट कर दें। ठीक है, ये आपके हैं और आप, ये आपका एविडेंस है कि मैंने ये काम किया। अब देखिए, अगर मैं इसमें कंपैरिजन तो है नहीं, लेकिन अगर मैं ट्रीटमेंट एफिकेसी आउटकम्स वगैरह भी डाल देता हूँ ना, तो ये रह जाएगा कोई लगभग, लेकिन माने 400-500 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पिको टेबल का फायदा आपको क्या है? एक तो पिको टेबल का फायदा ये है कि आपके पास एमबेस की एक्सेस नहीं है। अभी आपने ये वाला हिसाब सिर्फ पबमेट पे करके मैंने आपको दिखाया। ठीक है, इस पे कितने हमें टाइम लगा? 20 मिनट लगे हार्डली। ठीक है, यही काम आपने पबमेड सॉरी एमबेस जो है वो एंट्री के लिए है, कॉकरेन मैच टर्म्स, सिनाही ऊपर सब्जेक्ट टर्म्स, ये सारा काम आपने बारी बारी जो अपने आर्टिकल्स है वो एक जगह जमा करने हैं। ठीक है, हमजा मेरी आवाज आ रही है? जी जी, जवाद, इफ यू कुड काइंडली मूव टुवर्ड्स क्लोजिंग इंशाल्लाह, ताकि नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हाँ, हुए। बस जा रहे हैं, हो गया, खत्म हो गया। तो बस यही मैं पिको टेबल था, आपको बना के भी मैंने दिखा दिया। ठीक है, इसके अंदर टेक होम देखिए, सिंपल, इसको मैं समराइज 2 मिनट में करूँ तो यही है कि आपको मैश के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, मैश मैश के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, एंट्री टर्म्स, की टर्म्स, कीवर्ड्स का आपको पता होने चाहिए। दिस वाज द सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ पिको टेबल। ठीक है, इतनी आसान नहीं होती। बहुत सारे आपके पास जो टॉपिक एक्चुअली हॉट होते हैं आजकल के दौर में, जो पब्लिश होने का जिनका चांस होता है, उनके ऊपर अक्सर इस तरह होता है कि आपको मैश ही नहीं मिल रहा होता। वो नए नए ट्रायल्स आए होते हैं, नई ड्रग्स पे होते हैं, उसकी अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है, लेकिन वो एक लेटर पार्ट में हम 7-8 दिन की वर्कशॉप्स करेंगे, उसके अंदर उन सारी हम जो जो पोटेंशियल मसले हो सकते हैं उनको हम डील करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो लेकिन ये एक सिंपलेस्ट, एक फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट, एक आपको एक्सपोजर देने के लिए दिस वाज द बेस्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे खत्म हो गया। इसको 1 मिनट में मैं समराइज कर देता हूँ। आपने अपने रिसर्च क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि मेरी पॉपुलेशन क्या है, मेरी इंटरवेंशन क्या है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसी इंटरवेंशन के साथ कि नहीं कर रहा, मैं कौन आउटकम क्या देख रहा हूँ, मैं उसकी सिर्फ सेफ्टी एडवर्स इवेंट्स वगैरह देख रहा हूँ या मैं उसकी ट्रीटमेंट एफिकेसी भी देख रहा हूँ। उस लिहाज से आपने उसके मैश और कीवर्ड ढूंढने हैं, उनकी सर्च स्ट्रेटेजी बनानी है और आर्टिकल्स डाउनलोड कर लेने हैं, और साथ साथ आपने अपना पिको अपडेट रखना है। ठीक है, ये पिको देखिए, हमारे पास एमबेस की एक्सेस नहीं है। ये पिको आपने सिर्फ फाइल के तौर पे किसी ऐसे बंदे को भेज दिया ना जिसके पास लाइब्रेरी की एक्सेस है एमबेस की, जो एल्सेवियर वाली है, तो वो इजीली इसकी बेस के ऊपर आपको एमबेस से सारी सर्च स्ट्रेटजी रन कर देगा विद इन 5 to 6 मिनट्स, अगर वो एक्सपर्ट है तो। ये चक्कर है। ठीक है, बस ये हेयर इट एंड्स। होपफुली इट वाज अ प्रोडक्टिव सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। मैं 2-3 मिनट में आपके क्वेश्चंस जो है वो आंसर करने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट इन जवाद, टर्म्स वी की आर आउट ऑफ टाइम।